یہ ہے اپنے نبی, انہی کو کہتے مصطفیٰ. اب سمجھے کردار مصطفیٰ نا, مصطفیٰ مطلب سلیکٹڈ, چنا ہوا, جسے تم چنتے ہو, جسے تم چنتے ہو اپنی عقل کے مطابق, پھر چن کے پچھتاتے بھی ہے نا. الیکشن کی طرف مت جائیے, بیوی کے لیے بھی کسی کو چنتے ہو نا, دوستوں کے لیے بھی کسی کو چنتے ہو نا, امامت کے لیے بھی کسی کو چنتے ہو نا. بولو کتنے لوگ پچھتا رہے چن کے, ہاتھ نہیں اٹھانا ورنہ گھر جانے کے مسائل ہو جائیں ہے نا. چنتے ہو نا, چن کے پچھتاتے ہو. اللہ ہائے ہائے میرا اللہ, کائنات کا اللہ, جس کی ضد نہیں, جس کی مثل نہیں, جس کی مثال نہیں. اللہ نے اپنی ذات کے لیے جس کو چنا اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے امام اس کو بیان کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں. ایسی شخصیت ہے یہ چنی ہوئی. حسن کتنا بے مثال, جس پر اللہ نے 70,000 غیرت کے پردے ڈال کے بھیجا. کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا خوبصورت ہوگا. بتاؤں کتنے خوبصورت تھے. مولائی کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں حضور اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیواروں کا عکس حضور کے گالوں میں ہم دیکھا کرتے تھے. حضور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو چاند حضور کے گالوں میں تیرتا نظر آتا تھا. اگر حضور سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو سورج کا حضور کے گالوں کے اندر تیرتا سورج نظر آتا تھا. اور حضور کا حال یہ تھا, اللہ اللہ, جو حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا. اگر میں اس پر گفتگو کروں نا تو آپ کو اسی پہ ٹائم ختم ہو جائے گا حسن رسول پر. لیکن ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور کو اگر کافر کے بچے بھی دیکھ لیتے تو کافروں کے بچے بھی حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کافروں کے بچے اتنے خوبصورت تھے حضور. میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے, 10 منٹ میں میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. حالانکہ ابھی میں نے کردار شروع نہیں کیا, تمہید میں بات آج شاید پوری ہو جائے, کیونکہ میرے بعد آپ کو سننا ہے اور لوگوں کو بھی. اگر میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں تو ان بزرگوں کا ٹائم کٹے گا. لیکن بات میں دیکھو حضور تھے ایسے, اتنے خوبصورت تھے نا حضور, جو دیکھتا تھا حضور ہی کا ہو کے. ایک روایت ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنا چاہتا ہوں کچھ شرح کے ساتھ. کتنے خوبصورت. کہتے ہیں ایک یہودی کا بچہ تھا, ایک یہودی کا بچہ تھا, اور چونکہ مدینے میں آبادی مکس تھی, مخلوط آبادی تھی. آبادی مدینہ منورہ میں مکس تھی, مخلوط آبادی تھی. مکس کہتے ہیں جیسے اپنے یہاں ہندوستان میں ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں, ایسے اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ مسلمان رہتے تھے. ایک یہودی کا بچہ, یہودی مطلب بنی اسرائیل, اسرائیلیوں کا بچہ, سمجھانے کے ہے نا. اور یہودی دنیا میں سب سے بدترین قوم, یہودی ایک دم نیچ قسم کی قوم یہودی. ایک ایک دن میں جنہوں نے 70 انبیاء کو قتل کیا, شہید کیا, یہودی. ماؤں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا, یہودی. اپنی خواہشات کے لیے جنہوں نے اللہ کے قانون کو بدلا, یہودی. آج آپ بھی بہت کچھ کہتے ہو, اللہ کا قانون آپ بھی بدل رہے ہو, اللہ کے قانون کو آپ بھی تبدیل کر رہے ہو. اللہ کے بندو, اللہ نے جس نے اللہ کا قانون بدلنے کی کوشش کی, اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا دنیا میں. آپ بھی اللہ کا قانون بدلنے چلے ہو, شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجاتے ہو, اللہ کا قانون بدل رہے ہو. تمہاری بیٹیاں ناشتی رب جگہوں کے نام پہ, اللہ کا قانون بدل رہے ہو. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں, اللہ کا قانون بدل رہے ہو. مسلمان کی بیٹی بے پردہ گھومے, وہ اللہ نہیں
हरगिज नहीं। मेरे नबी की शहजादी की रसूलुल्लाह ने कैसी तरबियत की थी कि सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम बार बार लेते हो, उनके वसीले से दुआएं करते हो। कभी जाना भी कि सैयदा फातिमा कौन है? जिसके सर के दुपट्टे को, जिसके सर पे जो चादर और दुपट्टा रहता था, उस दुपट्टे को सैयदा फातिमा ने इतना बचाया, इतना बचाया, इतना बचाया कि फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने तक नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने, सर के बाल को नहीं, सर को नहीं, ज़ाते फातिमा को नहीं, बल्कि जो दुपट्टा सैयदा ओढ़ती थी उस दुपट्टे को भी कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो नबी के शहजादी है। अपनी बेटियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, वलीमे में बेपर्दा चली, मैयत में बेपर्दा चली, बाजार में बेपर्दा चली। बाप तुझे गैरत नहीं आती, भाई तुझे गैरत नहीं आती, माँ तुझे गैरत नहीं आती। और अब तो बड़े शहर, आपके यहाँ नहीं हो गया ऐसा, बड़े शहरों में हो गया, लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे दिया, लड़की दोस्त बना रही मोबाइलों पर, लड़कों से बात कर रही है। माँ बाप भी जहन्नम में जाएंगे, भाई भी जहन्नम में जाएगा, और ये बेटियां भी जो बेबाक हुई। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबा से, औरत के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? तो सहाबा किराम ने जवाब दिया, लेकिन मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं मिला। तो मौलाए कायनात घर गए और घर जाकर के पूछा, अल्लाह के रसूल सवाल करते हैं कि औरत के लिए सबसे कीमती और बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा पाक ने फरमाया, हुजूर ने अगर सवाल कहे तो हुजूर को जाके जवाब दे दो, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि कोई अजनबी मर्द उसको न देखे और वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे। औरत के लिए बेहतरीन चीज ये है क्या? उसको कोई ना देखे, वो किसी को ना देखे, अजनबी को। जब मौलाए कायनात ये जवाब लेकर गए ना, तो आका ने पूछा, अली किसने दिया ये जवाब? बस की आका, आपकी शहजादी फातिमा ने। हुजूर ने खुश होकर कहा, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपनी बेटियों को हीरोइन की जिंदगी तो पढ़ाई, सीरियल की अदाकारा की जिंदगी तो बताई, लेकिन हमने हुजूर की शहजादी की जिंदगी उनको नहीं बताई। इसलिए डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, गजलें हो रही है, नाजायज हराम ताल्लुकात हो रहे हैं। अब तो बड़े शहरों में ये भी सुनने में आ रहा है कि शादीशुदा औरतें भी नाजायज और हराम ताल्लुकात की तरफ जा रही है। मुसलमानों किधर जा रहा है अपना माशरा? एक दौर वो था कि भाभी को देवर नहीं पहचान पाता था, इतने पर्दे का एहतमाम था। ससुराल के सामने बहुएं नहीं जाती थी, इतना पर्दे का एहतमाम था। आज हमें क्या हो गया है? हमारे घर से पर्दा गया। कम से कम मुसलमान होने का ख्याल करो। शादी में नाचते हो, नचाते हो। और मेरे जवानों का जहां तक हाल है, अल्लाह अकबर, गंदी फिल्में देखी जा रही, गंदी सीरियलें देखी जा रही। अल्लाह के बंदो, सिर्फ कलेमा पढ़ करके छुट्टी नहीं मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की तरफ देखो। तो बहरहाल मैं दूर नहीं जाता, टाइम मुकम्मल हो रहा है। अर्ज ये कर रहा था कि बनी इस्राइल ने अल्लाह का कानून बदलने की कोशिश की। अल्लाह ने उनके चेहरों को सूअर और बंदर की तरह बना दिया। तुम अल्लाह का कानून मत बदलो, अल्लाह के कानून पे अमल करो। हुजूर जो कानून लेकर आए उसको मिशाले राह बनाओ, उसको अपने लिए आइडियल बनाओ। अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी में नमूना है। शादियां करो तो नमूना हुजूर को बनाओ, मैयत हो जाए तो नमूना हुजूर को बनाओ, सौदा लाने जाओ तो नमूना हुजूर को बनाओ, तिजारत करो तो नमूना हुजूर को बनाओ, बच्चों की परवरिश करो तो नमूना हुजूर को बनाओ, रिश्ते तय करो तो नमूना हुजूर को बनाओ। हर जगह हुजूर को आइडियल बनाओ। हुजूर आइडियल है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हुजूर की जिंदगी बेमिसाल है। अर्ज ये कर रहा था, एक यहूदी का बच्चा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इतने खूबसूरत यहूदी के बच्चे ने हुजूर को देखा। हुजूर थे बहुत, मेरे इमाम से, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। क्या हुआ? यहूदी के बच्चे ने मेरे करीम आका को देखा और देखकर हुजूर का आशिक हो गया।
बच्चे जल्दी किसी के आशिक नहीं होते, लेकिन ये मेरे हुजूर का हुस्न है। क्या हुस्न था, क्या जमाल था। यहूदी का बच्चा आशिक हो और हुजूर के पास आने जाने लगा, हुजूर की नालैन सीधी करता, हुजूर की मिसवाक रखता, हुजूर के लिए वुजू का पानी रखता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन उसके बाप को किसी ने चुगली कर दी कि तेरा बेटा तो मोहम्मद अरबी की खिदमत करता है, उनके पास जाता है। अच्छा, मेरा बेटा वहां जाता है। घर में वो बच्चा आया, यहूदी बाप ने कहा आज के बाद तुमने घर के बाहर नहीं जाना। बाप था, वो बच्चा था। जैसे ही बाप ने बच्चे को कहा तूने घर के बाहर नहीं जाना, उसने कहा ठीक नहीं जाएंगे। अब हुजूर को उसने नहीं देखा तो चुप के रोता, छुप के रोता, आका की याद आती, तड़पता, बिलखता, आहें भरता। एक बात बताऊं, नबी के आशिक बनते हो ना, जिसे इश्क होता है वो महबूब के लिए रोता है, बिलखता है, तन्हाइयों में महबूब को याद कर करके तड़पता है। सच बोलना, तुमने गाने सुनकर तो रोया है, कभी रसूलुल्लाह के लिए भी रोया? 500 की नोट गुम हो गई तो रोया है, कभी आका की याद में भी रोया? बताओ, आशिक हो ना सिर्फ नारे वाले, आशिक हो ना सिर्फ फातिहा का खाना खाने वाले, आशिक हो ना सिर्फ नाच सुनकर झूमने वाले। मैं आपको ताना नहीं दे रहा, लेकिन कभी एहसास भी करो, जो कौम क्रिकेट की टीम के हारने पे रोती हो, उस कौम को कभी अपने गुनाह याद करके रोने की तौफीक नहीं हुई? कभी सोचा टीम क्रिकेट हार गई तो मुल्क को तकलीफ हुई, लेकिन तुमने जो गुनाह किए हैं, उम्मते खजरा में आराम करने वाले रसूल का तुमने दिल दुखाया। कभी सोचा कि अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा? दावा इश्क का, हुजूर से इश्क का दावा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर, इश्क रसूल का दावा। मोबाइल के अंदर गाने। इश्क वाले तो महबूब के सिवा कुछ जानते ही नहीं, उन्हें तो महबूब के सिवा कुछ पता ही नहीं। सोचो, यहूदी के बच्चे को इश्क हुआ और हुजूर से उसको रोक दिया गया तो इतना तड़प रहा है। हम तो मुसलमान के बच्चे हैं ना, कभी हमें रोना आया हुजूर के लिए? कभी नाते सुन के रोए? अब तो नात भी तफरीह का जरिया, अब तो जज्बा भी तफरीह का जरिया, अब तो तकरीर भी तफरीह का जरिया। मुसलमानों, ये तफरीह गाह नहीं, ये एहतिसाब की जगह है। ये दिल बहलाने की जगह नहीं, यहाँ तो दिल पिघालने की जगह है, एहसास करने की जगह है। बहरहाल कितना रोए और क्या करे, कितना दुखड़ा और क्या क्या बयान करे। बस इतना ही कि यहूदी का बच्चा था, लेकिन इश्क उसका सच्चा था। हुजूर से जुदा होकर रोता रहा और उस इश्क ने उसको बीमार कर दिया, बिस्तर पे पड़ गया। बाप सोचता था मेरा बेटा घर में रहे रहे बीमार हो गया। बड़े बड़े तबीब लाए, हकीम लाए, जैसे जैसे इलाज कराया वैसे वैसे उसकी बीमारी बढ़ती गई। कहने वाले ने कहा ना, बल्कि कहने वाला क्या, मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, मरज़े इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और मेरे इमाम कहते जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। फिर के गली गली दवा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। रुखसते काफिला का शोर गश्ते हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। इश्क का मरीज था, दवा होती गई बीमार। लोगों को पता ही नहीं चला कि बीमारी क्या है। बीमारी अलग हो, दवा अलग हो, तो मर्ज बढ़ता ही जाता है। आखिरकार कोई इलाज न कर सका। सारे तबीबों ने हाथ टेक दिए, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आहा ईसा अगर दवा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। सारे तबीबों ने हाथ टेक दिया। एक मर्तबा
गरम गरम सांसें उसके सीने और नाक से निकल रही थी। बाप को यकीन हो गया मेरा बेटा बचेगा नहीं। बाप ने कहा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंख की ठंडक, काश तू अच्छा होता, मैं तुझे दूल्हा बनाता, तेरी बारात निकालता, अपने अरमानों का को तकमील पर पहुंचते हुए अपनी आंखों से हाय मेरे बेटे, मैं तेरी बारात न देख सका, तुझे दूल्हा न बना सका, ऐसा लगता है कि अब तू बच न सकेगा। बाप की गुफ्तगू सुनकर बेटा हमक हमक कर रोने लगा और बाप से कहा बाबा मैं तो दुनिया से जरूर जा रहा हूँ, शायद चंद घड़ियां भी अब मेरी जिंदगी की बाकी नहीं है। ऐ मेरे अब्बा जी, बाप तो बाप होता है, क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? मैं दुनिया से जा रहा हूँ बाबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते? बाप ने कहा मेरी जान, जब तू दुनिया से जा ही रहा है, अपनी जान देकर भी अगर तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़े तो मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। बता मेरे लाल, मेरी जान, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? एक लौते बेटे को शादी का दूल्हा न बना सका, कम से कम यकीन दिलाता हूँ आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। बोल क्या ख्वाहिश है? अगर अपना मकान, दुकान, कारोबार, इज्जत, आबरू सब दांव पे लगाकर तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं तो कर दूंगा। बोल मेरी जान, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? रोते हुए बच्चे ने कहा बाबा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मजहबी तासुब आपको मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने नहीं देगा बाबा। बाप ने कहा कसम है मूसा की रखी, मैं जरूर तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बता क्या है? बाबा मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा, मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा, मैं मरीज इश्क हूँ, मैं मरीज इश्क हूँ, मुझे किसी से इश्क हुआ था, आपने मेरे इश्क को न समझा, किसी की चुगली लगाने पर आपने मुझे महबूब से रोक दिया, मैं अपने महबूब को न देखा, बीमार पड़ गया और उसी की जुदाई में घुलता रहा बाबा। अब आखिरी बार मरते मरते एक झलक उस यार को देखकर आंखों को ठंडा करना चाहता हूँ बाबा। जाओ ना, मेरे यार को खबर कर दो, अब तो मैं चलने के भी काबिल नहीं, वरना पैरों पे चल के जाता, उसके कदमों पे सर रखता, उसी पर जान कुर्बान कर देता, लेकिन बाबा मैं चलने के काबिल नहीं। मेरे महबूब से कह दे कि मरीज इश्क सरे बाली जहाँ बलब है तड़प रहा है, वो आएगा, उसे देखूंगा, देख करके आंखें बंद कर लूंगा। बाप ने हैरत से कहा कौन है इस मदीने में तेरा महबूब? बेटे की सांसें थम गई, अंजाम से बेपरवाह होकर कहा आमिना का लाल, सुभान अल्लाह, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, मुसलमानों का नबी, मेरा महबूब। बाबा इश्क मजहब और मसलक का पाबंद नहीं होता बाबा, इश्क अमीरी और गरीबी का पाबंद नहीं होता बाबा, इश्क नस्ब और इलाके का पाबंद नहीं होता, इश्क आवारा होता है। मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ, इश्क आवारा होता है, जिधर दिल लग जाता है उसी से इश्क करने लगता है। बाबा बड़ा खूबसूरत है, जाने मली है वो, जाने मलाहत है वो, जाने हुस्न है वो, जाने तमन्ना है वो, जाने जाना है वो, जाने आबरू है वो, आबरू की जान है वो, किस्मतों की जान है वो, अल्लाह का हबीब है वो। मूसा ने जिसकी बशारत दी थी वो आया, ईसा ने जिसके लिए दुआएं की थी वो आया, खलील ने काबा बनाते हुए जिसे मांगा था वो आया, लेकिन अफसोस लोग मजहब और मसलक के तासुब में उसको फरामोश कर गए। बाबा एक झलक दिखा दो उसकी। बेटा मोहम्मद की बात करते हो? जी बाबा। बेटा तू यहूदी का बच्चा है, और फिर है बच्चा, यहूदी होता कोई बड़ा मालदार होता, सरमायादार होता, मनसब वाला होता, मर्तबे वाला होता, शायद वो आता। तू तो बच्चा है, बच्चों की गिनती कहीं नहीं होती बेटा, वो नहीं आएगा बेटा, वो बहुत बड़ा है, उसके इर्द गिर्द गुलामों का, दीवानों का, परवानों की तरह ऐसे जमघटा लगता है बेटा, जैसे शमा जलती है तो परवाने टूट पड़ते हैं। बच्चे ने कहा बाबा मैं उसकी महफिलों से लुत्फ अंदोज हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ बाबा
तुम बात कर रहे हो ना बड़ों की, वो ऐसा बड़ा है वो कभी किसी छोटे को परामर्श नहीं करता। वो ऐसा अखलाक और किरदार वाला है, वो मोमिन और काफिर को शफकत देने में फर्क नहीं करता। उसका अब्रे करम जैसे अपनों पे बरसता है वैसे बेगानों पे भी बरसता है। उसके करम का हाल ये है, वो चिड़िया कौवे और परिंदों पर भी करम की नजर डालता है। गोया के यूं किसी ने कहा हो ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का घर है, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह बाबा जाए ना, एक मर्तबा जाए, उनसे सिर्फ कह दे कि मैं बीमार हूँ, वो जरूर आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही थी, बच्चे के जज्बात बाप को बेचैन कर रहे थे। बाप उठा, मेरी लाल मेरी जान, यकीनन जब मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा तो यहूदी मेरा सोशल बाइकाट कर देंगे, लेकिन कुछ भी हो मरते हुए बेटे की आखिरी तमन्ना तो पूरी कर दूंगा। सारे समाज के दुख दर्द सह लूंगा, लेकिन तेरी आरज़ू जरूर पूरी करूंगा। बोझल कदमों से उठा और उठने के बाद पैरों में जंजीर पड़ रही थी तासुबात की, लेकिन सबको तोड़कर मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। सहाबा किराम परवानों की तरह मेरे आका को घेरे हुए बैठे हुए थे। ऐसे में सरकार की निगाहें करम उठी, पूछा क्या बात है? उसने कहा मेरा बेटा तेरा आशिक है, एक झलक तुझे देखना चाहता है। कौन? छोटा सा बच्चा है। सहाबा को देखा, सहाबा ने इसकी जाने पना जान पना आलम पना बंदा परवर गरीब परवर आका, एक छोटा बच्चा यहूदी का आता था, खिदमत में रहता था, अब वो नहीं आ रहा है, उसी बच्चे का जिक्र हो रहा है। अच्छा, जो हमारी महफिल में आता था, खिदमत करता था, चंद रोज से नहीं आता, वही? हाँ वही। हुजूर इश्क के मर्ज में गिरफ्तार है, सरे बाली इंतजार कर रहा है। कहने वाले ने बल्कि उस्ताद ज़मन ने कहा है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा अच्छा वो बच्चा है, यहूदी का बच्चा बीमार है और कायनात का इमाम इमामुल किबलतैन सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन एक यहूदी के बच्चे को देखने के लिए सहाबा से कहते चलो उसको देखने चलते। बड़ी माजरत, किरदार मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, हुजूर एक यहूदी के बच्चे को इतने एहतमाम से देखने जा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप बीमार पड़ते हैं, क्या उनकी खिदमत करते हो? तुम्हारा भाई बीमार पड़ता है, उनकी खिदमत करते हो? कहां हो? किरदार की बात करना आसान है, किरदार वाला बनना मुश्किल। एक यहूदी के बच्चे, हुजूर उससे मुलाकात के लिए सहाबा को लेकर गए और गए ना, हाय हाय हाय, आज लोग बीमार को देखने जाते तो मुंह पे कपड़ा रख के जाते। मेरे करीम आका का अंदाज ही था, बीमार को देखने जाते थे उसके बिस्तर पे जाके बैठते। हुजूर जाके उसके बिस्तर पे बैठ गए। बच्चे ने हुजूर को देखा, फूट फूट के रोने लगा। सरकार ने पेशानी पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो? रो पड़ा, अब नहीं रहूंगा। बाप ने कहा बेटा अगर पहले कह देता तो शायद ऐसा नहीं होता। बेटे ने कहा होगा बाबा पहले कह देता तो शायद ऐसा नहीं होता। आप भी तो बुलाकर न लाते ना। दुनिया इश्क को जल्दी समझती नहीं है, दुनिया इश्क को जल्दी समझती नहीं, इश्क वालों को सताती है। हम अंगूठे चूमते, लोग कहते क्यों चूमते हो? इश्क लोग समझते नहीं। हम सलाम पढ़ते, लोग कहते क्यों पढ़ते हो? लोग इश्क को समझते नहीं है। हम नमाज के बाद हुजूर की तरफ रुख करते हैं, क्यों करते हो? दुनिया इश्क को समझती नहीं है। जब हम तड़पते या रसूल अल्लाह कहते हैं, लोग कहते क्यों कहते हो? हमने कहा नादान, अगर लोग इश्क समझ लेते तो एतराज न करते, मगर बात यह है दुनिया इश्क नहीं समझती और दीवाना दुनिया को नहीं समझती। जाओ जो कहना है कहते रहो, हम तो इश्क के रसूमात को अदा करते रहे। तार पे लटका दो तो भी या रसूल अल्लाह, इसलिए कि वो दीवाना ही नहीं जिसे पत्थर न मारा जाए, वो दीवाना ही नहीं जिसे ताने न दिया जाए, वो दीवाना ही नहीं जिसे जो है वो लोग बुरा ना कहें। अल्लाह अकबर। सैयदना उवैस करनी को लोग पत्थर मारते थे तो उवैस कहते थे बड़े न मारा करो, छोटे मारा करो। तो लोग कहते थे उवैस दीवाना भी बनता है, पत्थरों से भी डरता है। कब पत्थरों से डर नहीं लगता। फिर मैंने कब कहा ना मारो, मारो, बड़े मत मारो, छोटे मारो। क्यों? बड़े
मारते हो तो खून निकलता है, खून निकलता है तो वुजू टूटता है, वुजू टूटता है तो नामे मोहम्मद पे बेवुजू नहीं ले सकता। इसलिए कहता हूं मारो, छोटे छोटे मारो ताकि मेरा वुजू न टूटे। तुम्हारा शौक भी निकलता रहे दीवारों को सताने का, और मैं बावुजू नबी का नाम भी लेता हूं, मेरा काम भी चलता रहे। पता चला जो जितना बड़ा आशिक होता है वो उतना बड़ा बाअदब भी होता है। जितना बड़ा आशिक होता है उतना बड़ा बाअदब भी होता है। आपसे पूछता हूं किस किताब में लिखा था कि नबी का नाम बावुजू लिया जाए? इश्क के लिए कोई किताब नहीं होती, इश्क आता है तो अंदाज इश्क खुद ही आ जाता है ना। ये बात है। लोग कहते हैं क्यों मिलाद मनाते हो? हमने कहा आशिक होता तो न पूछता। जब तू अपने बेटे के बर्थडे मनाने पे कोई दलील नहीं तलब करता तो हम अपने महबूब की मिलाद में कैसे दलील मांगे? अगर अल्लाह उसको जरूरी समझता तो अल्लाह कुरान में कहता मिलाद मनाओ। मैंने कहा इसीलिए तो अल्लाह ने नहीं कहा ना। क्यों? अल्लाह कहता तो सबको अमल करना पड़ता है। अल्लाह ने ईद का हुक्म दिया, बकरीद का हुक्म दिया, मिलादुन नबी का हुक्म इसलिए नहीं दिया क्योंकि कानून के मौके पर पहचाने नहीं जाते, पहचान तो इश्क के मौके पर होती है। अगर अल्लाह किसका भी ऐलान करता कानून तो सबको करना पड़ता, मुनाफिक भी करते, मोमिन भी करते, फिर इश्क वाले कैसे पहचाने जाते? अल्लाह ने हुक्म ना दिया ताकि इस मौके पे इश्क वालों की पहचान हो, है ना। इश्क वाले मोहब्बत के मौके पहचान, इश्क के मौके पहचाने जाते हैं। अल्लाह पर तो बात दूर निकलती जा रही। क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर आए, आकर के बैठे, पूछा कैसे हो? रो पड़ा आका, अब बचूंगा नहीं। कुर्बान है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा? रो रहा है, हुजूर के कदमों में सर रो रहा है। हुजूर अब मैं दुनिया से जा। आका ने कहा कलमा पढ़ ले। हुजूर ने क्या कहा? दुनिया कलमा पढ़ ले। उसने बाप की तरफ देखा, क्या करूं? बाप ने उसका इश्क अब मान गया तो आंख से कहा जो करे जो कहने कर ले। इसका मतलब काफिर भी हुजूर से इश्क कर ले तो अल्लाह उसको कुफ्र पर रहने। हाय हाय हाय, इश्क, क्योंकि अल्लाह का फैसला है जो मेरे महबूब का आशिक होगा मैं उसको जहन्नम में जाने, चाहे मरते मरते ही पड़ेगा मगर पड़ेगा। आशिक कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, मरते मरते सुधरेगा। इसीलिए कहता हूं इश्क कर लो, आखिरी हिचकी में हिदायत मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन सच्ची करो, मुनाफिकत नहीं करना। क्या इशारा किया? इशारा जो कहते कर ले। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जैसी का हुजूर उसके सर पे हाथ रख के उठे, मुस्कुराया और मुस्कुरा गया। हुजूर ने कहा उसको ईमान में। जैसे ही घर के बाहर निकले एक आदमी दौड़ते हुए, हुजूर वो इंतकाल कर गए। यानी एक ऐसा भी बंदा जन्नती है जिसने ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना ज़कात दी, ना हज किया, इधर कलेमा पढ़ा मुसलमान हुआ, उधर रो गई। क्या कहा? हुजूर उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? हाँ इंतकाल। देखो आशिकों को इनाम क्या मिलता है? जो उनसे सच्चे दिल से प्यार करे इनाम क्या मिलता है? इंतकाल हो गया। हाँ, उसके बाप से पूछो क्या चाहते हैं। उसके बाप ने कहा हम लोग यहूदी, तुम लोग मुसलमान। उसने कलमा पढ़ा मेरे सामने, वो भी मुसलमान। अब मैं उसकी तदफीन करूंगा तो मुझे तो मेरी कौम तबाह डालेगी, प्रेशर करेगी, ऐसे करो वैसे करो। एक काम करो, इसको तुम लोग लेके जाओ। इश्क का इनाम, इश्क का इनाम, इसी इबादत का वो सिला ने जो इश्क का सिला। इसको लेके जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। सहाबा ने लाश ली, हुजूर से हुजूर क्या करें इसका? फरमाया क्या करोगे? हुजूर इसका कोई घर नहीं, इसके बाप ने जनाजा हमें दिया, अब ये जनाजा उठेगा कहां से? आका ने फरमाया मेरा आशिक था ना, इसलिए इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सरकार अनवर सुजैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जानशीन फातिह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुली वल करम वालिहि किराम वबनिहि करीम व उम्मतिहि करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया दुरूद पढ़ ली, आप एक बार फिर पढ़िए दुरूद। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट में बात पूरी कर लेता हूं, आप दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुली वल करम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कदम सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन व हुसैन। आका ने फरमाया मुसाफिर का प्रोग्राम बाद में रखें, थोड़ी देर के बाद। आप हजरत आहिस्ता से बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। ये कीमती लम्हे हैं हमारी आखिरत की जुल्फों को संवारने के लिए। आप हजरत बैठ जाएं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मौलाना मुहम्मद मादिल जुली वल करम व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो साहबा ने इसकी आका क्या करें इसका? आका ने फरमाया कि मेरा आशिक था ना, इसलिए इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। आप गौर फरमाएं, हम लोग इस आस में तड़पते हैं, बिलखते हैं कि मरेंगे तो कब्र में हुजूर का दीदार होगा। आशिकों को हुजूर की चौखट से उनका जनाजा उठना नसीब होता है। इसका जनाजा मेरे घर से उठे, और जब जनाजा हुजूर के घर से उठाना, साहबा कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके जनाजे में चल रहे थे तो अपनी उंगलियों को, पैर की उंगलियों को टेक कर, पूरा पैर नहीं रखते थे, उंगलियां टेक कर चलते थे। तो साहबा ने इसकी आका आप उंगलियां टेक कर चलते? सरकार फरमाते हैं ये मेरा ऐसा आशिक था, ऐसा आसमानों में मकबूल हुआ कि जब इसका इंतकाल हुआ तो आसमान के इतने फरिश्ते जमीन पर आए कि पैर रखने के लिए मदीने में जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख करके चल रहा हूं, उंगलियां रख कर। और फिर जब जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा, साहबा ने इसकी आका जब भी किसी का इंतकाल होता है तो घर वाले कब्र में उतरते हैं, कब्र में कौन उतरेगा? आका फरमाते हैं इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। इश्क पर सिला क्या है? इश्क लेना। एक यहूदी का बच्चा इश्क पाले, क्या नसीब है। ईमान मिला, हुजूर के घर से जनाजा उठा, और अब कब्र में उससे पहले, उसकी कब्र में उससे पहले हुजूर उतर रहे हैं, आका है। इनाम क्या इश्क का? काश हम हुजूर से इश्क करते। हमने तो हीरो से किया, क्रिकेटरों से किया, नचनियों से किया, सालिमों से किया, गुनाहों से किया। आका जब कब्र में उतरे ना, साहबा कहते हैं हुजूर जब उसका जनाजा कब्र में रख रहे थे तो आका पसीने पसीने थे, और हुजूर का पसीना माथे से टपक टपक कर उसके कफन पर, उसके चेहरे पर आ रहा था। गोया क्या नसीब है, कोई कफन में नमाजों का सवाब ले जाएगा, कोई रोजों का सवाब ले जाएगा, कोई जिहाद का सवाब ले जाएगा, कोई शहादत ले जाएगा। लेकिन ये एक यहूदी का बच्चा है,
اس کے کفن میں موتیوں کی طرح مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ جب حضور اس کی قبر سے باہر آئے، ہم نے پوچھا آقا اس کی قبر میں آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میں نے اس کی قبر میں اس کو رکھا تو جنت کی حوریں دوڑ رہی تھی، تو ان کی بھیڑ اتنی تھی کہ میں ان کی بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو گئے، اور پھر عشق و مستی کے اس کشتہ عشق رسول کو صحابہ کرام نے ڈوبتی ہوئی اور بہتی ہوئی آنکھوں سے اس کی قبر کی مٹی سجائی، اور ایک عاشق رسول کو ہمیشہ کے لیے سپرد لحد کر دیا گیا۔ آپ بتائیں یہودی کا بچہ سچا عشق کرے تو اس کی زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تم تو مسلمانوں کے بچے ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کب تک رسول اللہ سے بغاوت کرو گے؟ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک مسجدوں سے دور رہو گے؟ کب تک اذان سن کر کرکٹ کبڈی اور گیم کے اندر مبتلا رہو گے؟ آؤ، عشق بہت عظیم سودا ہے، بڑا سستا بھی ہے، بڑا عظیم بھی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اس لیے کہ وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے جو عشق کا دعویٰ بھی کرے اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچائے؟ وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے جو عشق کا دعویٰ بھی کرے اور جوا کھیلے؟ کیونکہ فرمایا گیا جو جوا کھیلتا ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا سب حضور سے مسافہ کریں گے تو تم مسافہ کر سکو گے؟ اللہ اکبر، کتنی محرومی ہوگی، پچھتاؤ گے وہاں کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ سدھرنا ہے آج سدھرو، بدلنا ہے آج بدلو، انقلاب لانے آج انقلاب لاؤ۔ یاد رکھنا ارے کس کا ساتھ اس بے وفا دنیا نے دیا ہے جو آپ کا ہمارا ساتھ دے گی۔ گناہ مت کرو، گناہوں سے کبھی لذت تو مل سکتی ہے مگر گناہ سے کبھی عزت نہیں مل سکتی، گناہوں میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ملے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے میں، سکون ملے گا سنت رسول پر عمل کرنے میں، سکون ملے گا حضور کے کردار پر عمل کرنے میں۔ یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ فرمایا جب میری سنتیں مٹ رہی ہو اس وقت اگر تم میری ایک سنت پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آؤ سنتوں کو زندہ کرو، نیکیوں پر عمل کرو، اور آج جو مسجدیں ویران ہو رہی ہے توبہ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، اپنے ماں باپ کی دعا لینے والے بنو، اپنے رشتہ داروں کی دعا لینے والے بنو، اپنے پڑوسیوں کی دعا لینے والے بنو۔ ایک بات اخیر میں جاتے جاتے کہہ دوں، حضور نے پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ لوگوں کو دکھی مت کرو، لوگوں کو خوشیاں دو۔ تم نفرتیں بانٹنے نہیں آئے ہو، تم محبتیں بانٹنے آئے ہو۔ نفرت بانٹنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، سکون ہمیشہ محبت بانٹنے والوں کو ملتا ہے۔ محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے۔ رشتے داروں کے دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کا دل نہ توڑو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ کسی مسلمان کا دل توڑنا، کسی مومن کا دل توڑنا۔ ماں باپ کا دل توڑ کر سسرال میں جا کے رہتے ہو، ماں باپ کو ڈانٹتے ہو، ماں باپ کو دھکے دیتے ہو، ماں باپ کے گھر علیحدہ کر دیتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ بعض مسلمان لڑکے تو یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کو 3 دن کا کھانا کھلا دیا احسان کر رہے ہیں۔ لوگوں بھوکے کتے کو تو لوگ بھی ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ صرف کھانا کھلانا ماں باپ پر احسان نہیں ہے بلکہ ماں باپ نے جس پیار سے تمہاری پرورش کی ہے اس سے زیادہ پیار سے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کا حق ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کسی کا دل نہ توڑو، جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی بات نہ کرو۔ مومن مومن کو جوڑے، عاشق عاشق کو جوڑے، مسلمان مسلمان کو جوڑے۔ ہمارے نزدیک تو مسلمان کے لیے اسام الحرمین جو ہے وہ دلیل ہے، میں اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور طرف مت جانا۔ اللہ اکبر، مسلمان مسلمان کو توڑے، سلسلے کے نام پہ، برادری کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، خطے کے نام پہ، قبیلے کے نام پہ نفرت کی بات نہیں۔ جو عاشق ہے رسول اللہ کا ہمارے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ رسول اللہ کا کردار ہے۔ آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھے ادب اور اخلاق سکھائے۔ پوچھا حضور کون سے اخلاق؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے 3 باتیں سکھائی۔ کیا؟ اس پہ عمل کر لو کامیاب رہو گے۔ نمبر 1، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। सालन में नमक ज्यादा होने पे जो बीवियों को तलाक देने की बात करते हैं वो जालिम याद रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लाओगे फिर भी बीवी को गाली दी होगी तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डालेगा। बीवी को जब जलील मत करो। आका फरमाते हैं औरतों को कमीने लोग जलील करते हैं, शरीफ लोग जलील नहीं करते। बीवी घर की कनीज नहीं है, घर की मलका है। तुम्हारी बाई पिस्ती जो दिल के करीब की पिस्ती है उससे बीवी पैदा की गई है। उनकी इज्जत करो, उनका वकार करो। तुम्हारे बच्चों की माँ है वो, तुम्हारे घर की मलका है वो। जो घर की बीवी की इज्जत करना नहीं जानता मुसल्ला और तस्बीह उसको कभी जन्नत में नहीं लेकर जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। फकीह अब्दुल्लाह समरकंदी की किताब उठाकर देख लो, कुर्रतुल ऐन लिखी हुजूर की हदीस है। तो फरमाया जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। भाई ने बात बंद कर दी तुम जाके करो ना, पड़ोसी ने बात बंद कर दी तुम शुरू करो ना। माफ करने से इज्जत नहीं जाती, सदका देने से माल कम नहीं होता। अकड़ कर मत बैठो, अकड़ कर मत बैठो। लोग तुमसे दूर भागते तुम खुद करीब जाओ। इंशाअल्लाह लोगों के दिलों में नरमी पैदा ना हो। आप अपना काम करें ना, लोगों को जाने दीजिए। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, और जो तुमको महरूम करे तुम उसको अदा करो। बहुत सूफिया की बात करते हो ना, ये बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग को लोग सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए सिर्फ है या बुजुर्गों की तालीमात भी कुछ है। चादरें भी चढ़ाओ, फूल भी चढ़ाओ, मगर उनकी तालीम तो देखो। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी सुभान अल्लाह, आपका एक मुरीद था, लोहे का काम करता था। वो कैंची बना के लाया। हजरत ये कैंची है, मैं लोहार हूँ, तोहफे में देता हूँ। बेटा तू सिर्फ कैंची बनाता है कुछ और भी बनाता है? नहीं हुजूर और भी बनाता हूँ। क्या क्या बनाता है? सुई बनाता है, सुई बनाना जानता है? जी हुजूर सुई भी बनाता हूँ। बाबा हम सूफी लोग हैं, खानकाई लोग, यहाँ कैंची की बात ना किया कर, यहाँ सुई की बात कर। क्योंकि कैंची एक को दो करती है और सुई धागा दो को एक करता है। हम दो करने वाले लोग नहीं है, हम एक करने वाले। यही तो मेरे इमाम ने कहा, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में दावा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती होता है बात माफ कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। हम आतिशे सौदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है